Hello students, welcome back once again. Students, today I am going to start the second chapter of Python, that is Python revision tool. Already in the first chapter also we have seen some of the topics of class 11th as a revision. In this chapter we are going to learn in detail about strings, lists, tuples, dictionaries, and we will see some sorting techniques. First I start with strings. As I told before, what do you mean by string? String is nothing but it is a sequence of characters. That means in string, sequence of characters will be there. The characters can be in the form of alphabets, numbers, or some special symbols. Okay, strings in Python are stored as individual characters in contiguous location. That means in Python, the strings are stored as individual characters in contiguous location. We'll see the example. Suppose we are giving a string Python in the variable that is name. We are assigning a string that is Python, the string is Python, to the variable name. How it is stored in the memory? As I told, individual character will be stored in contiguous location. See here, this is the string. As I told, string is a sequence of characters. How many characters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 characters are there in the string Python, and it is stored in the variable name. That is, it is the storage location. That means name is referring to the value, a string type value, that is Python. The individual characters are stored in contiguous location. Contiguous location आप देख रहे हैं, one by one each and individual characters are stored. So in this way strings are stored in Python. That means individual characters are stored in contiguous location. In Python, indexing is used. As I told, to access the individual character of a string. आपने एक string दे दिया है, अगर आप किसी particular character को access करना चाहते हैं, if you want to access a single character or a particular character from the given string, then you need indexing. आपको index पता होना है. So what are the types of indexing? There are two types of indexing. One is forward indexing, and second one is backward indexing. So there are two types of indexing. You can use any of the way, forward indexing or backward indexing. In forward indexing, the index starts from 0. अगर इसी को हम forward indexing के थ्रू देना चाहते हैं, so आपको हमेशा याद रखना है forward indexing में हमेशा 0 से शुरू होता है, then it will go to size -1. यानी कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में जो पहला कैरेक्टर होगा, द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बी 0. हमेशा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होता है. देन इट विल गो टू अप टू साइज -1. साइज -1 मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है दैट विल बी द साइज. एज आई टोल्ड, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6. टोटल 6 कैरेक्टर्स आर देयर, सो इट विल गो टू साइज -1, दैट इज 6 - 1. 6 - 1 आपको पता है 5. दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होता है, इट विल गो अप टू 5. 0 1 2 3 4 5. यानी कि जब आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करते हैं 0 से स्टार्ट होता है. सो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो साइज ऑफ द स्ट्रिंग है, वो कभी भी आपका इंडेक्स में शो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा साइज -1 तक ही लिया जाता है. समझ में आ रहा है? देन इन द केस ऑफ बैकवर्ड इंडेक्सिंग, बैकवर्ड में आपको पता है इट विल गो इन दिस वे. दिस इज फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है. बैकवर्ड में आप यहां से स्टार्ट करेंगे एंड इट विल गो इन द बैक डायरेक्शन. सो हियर इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम -1, जैसे नंबर लाइन में होता है. यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं होगा. बैकवर्ड में इट विल स्टार्ट विथ -1. -1 से हमेशा स्टार्ट होगा and it will go up to minus size. यानी कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से स्टार्ट होता है और वो माइनस साइज यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर देखिए आप जब इंडेक्सिंग करेंगे -1 -2
-3, -4 एंड -5, 6। देन इसीलिए मैंने बताया -1 से लेकर माइनस साइज, जो भी साइज होगा स्ट्रिंग का, जब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज करेंगे तो -1 से स्टार्ट होने की वजह से इट विल गो अप टू माइनस ऑफ साइज, जो भी साइज रहेगा वहां तक आपका इंडेक्स वैल्यू होगा। लेकिन फॉरवर्ड में देखिए 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए साइज -1 तक ही लेते हैं। सो हाउ मेनी कंटीजियस ब्लॉक्स टेकन? देयर टोटल 6 ब्लॉक्स टू स्टोर 6 कैरेक्टर्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग पाइथन। होप इट इज क्लियर टू यू। इस तरह से हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। Now, if I want to access any particular character, suppose हम इस कैरेक्टर P को एक्सेस करना चाहते हैं। There are total 6 characters. Out of the 6 characters, I want to access the first character, that is P. P को अगर हमें एक्सेस करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग स्टोर किया गया है। देन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू गिव द इंडेक्स वैल्यू। आपको इंडेक्स बताना है जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको एक्सेस करना है। सो यू नीड टू स्पेसिफाई द इंडेक्स वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर दैट यू वांट टू एक्सेस। यानी यहाँ पर P को एक्सेस करना है। अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा नेम ऑफ 0। इन दिस वे यू कैन राइट। और अगर आप फॉरवर्ड नहीं, अगर आप बैकवर्ड यूज करना चाहते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग, देन ऑल्सो यू कैन राइट इट एज नेम ऑफ, सी द इंडेक्स वैल्यू ऑफ P इन बैकवर्ड इंडेक्सिंग इट इज -6। आप इन दोनों मेथड से आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सेस द कैरेक्टर P। फॉरवर्ड लिखेंगे तो आपको फॉरवर्ड का जो इंडेक्स वैल्यू है वो देना होगा, दैट इज 0। अगर आप बैकवर्ड यूज करते हैं तो बैकवर्ड का इंडेक्स वैल्यू क्या है? देखिए -6 है, तो आपको लिखना होगा नेम ऑफ -6। इस तरीके से आप लिखेंगे तभी आप कौन से कैरेक्टर को एक्सेस कर पाएंगे? यू कैन एक्सेस द कैरेक्टर P फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग पाइथन। इज इट क्लियर टू यू? नाउ as I told, if you want to get the size of the given string, अगर हम इसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग का साइज शो करना चाहते हैं, you want to get the size of this particular string or you want to take the length of the given string, for that there is a function called as len, L-E-N, to find the length of the given string. You can use this function. फंक्शन आपको पता है, जब भी आप फंक्शन लिखते हैं दैट मीन्स वॉट एवर आर्ग्यूमेंट यू आर गिविंग दैट विल बी गिवन विद इन पैरेंथेसिस। तो लेंथ आप लिखकर, सपोज हम इस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे? वेरिएबल का नाम लिखेंगे, क्योंकि पाइथन किस वेरिएबल में स्टोर्ड है? इट इज रेफर्ड बाय द वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे लेंथ नेम, यहाँ पर ये फंक्शन है, लेन इज द फंक्शन टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, और आप किस स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं? द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द पर्टिकुलर वेरिएबल नेम। तो नेम में जो भी स्ट्रिंग स्टोर किया गया है उसका लेंथ फाइंड आउट होगा एंड इट विल गिव द आउटपुट एज 6। समझ में आ रहा है? सो इस तरीके से पाइथन में स्ट्रिंग्स को स्टोर किया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन कंटीजियस ब्लॉक, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन कंटीजियस ब्लॉक, एंड इन दिस 2 टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग आर यूज। वन इज फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में आपको पता है it always starts with 0 and it will go up to size -1. Here in this case it is going up to 5 because the size is 6. 6 minus 1, that is 5. In backward indexing it will always start with -1. -1 से start होगा and it will go up to minus size तक आपका जाएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए -1 से स्टार्ट हुआ है, साइज 6 है, इसीलिए -6 तक गया गया। देन इफ यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग, फॉर दैट देयर इज ए बिल्ट इन फंक्शन len लिख करके आप जो भी स्ट्रिंग को देंगे, इंस्टेड ऑफ गिविंग द वेरिएबल नेम, इफ यू आर डायरेक्टली गिविंग द स्ट्रिंग, अगर आप डायरेक्टली लेंथ लिखकर आप स्ट्रिंग को लिखेंगे इंस्टेड ऑफ वेरिएबल नेम, देन ऑल्सो आउटपुट विल बी सेम। आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, स्ट्रिंग लेकिन देंगे तो आपको ध्यान देना है इट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। तो जो भी स्ट्रिंग देंगे उसका लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। इफ यू आर गिविंग अ वेरिएबल नेम, देन द वैल्यू स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, the length of that particular variable will be calculated and the output you will get accordingly. Hope it is clear to you. Next is item assignment not supported. These are the subheadings under the topic string. String के अंदर सब टॉपिक्स दिया हुआ है। सबसे पहला है item assignment not supported. What does it mean?
Suppose the same example I am taking, name equals to Python. This is the string. Now if I want to change any particular character, अगर हम यहाँ पर कैपिटल P को स्मॉल p करना चाहते हैं, that means I want to modify the individual character of this particular string. So whether it is possible in string, in Python, you cannot replace any individual character of a string because it is immutable. As I told in the first chapter, strings are immutable. Immutable का मतलब क्या होता है? जिसको आप modify नहीं कर सकते हैं. That means once you declared, you cannot modify later on. आप later on उसमें कुछ भी modifications, कुछ भी changes नहीं कर सकते हैं. That property is called as immutable. So strings are immutable. Immutable का मतलब क्या है? जब भी आप एक string declare कर देते हैं, later on in the program you cannot modify individual character of that particular string. Suppose अगर हम इसी यहाँ पर changes करवाना चाहते हैं, name of 0. If I am writing like this, name of 0 equals to p, इसका मतलब क्या है? Name is the variable, index value is 0. That means I want to change the value which exists in the index 0. 0 index में जो value exist करता है, जो character exist है, उसको मैं change करना चाहती हूँ. I want to change it from capital P to small p. So whether it will be happen, क्या ये changes applicable होगा? No, because it is immutable. So it will show error. अगर आप इस तरह की statement को लिखेंगे, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, so you won't be able to change the character of this particular string to small p. वहाँ पर error show होगा because item assignment not supported. You cannot assign. Assign यहाँ पर क्या है? Equal to है. You cannot assign any individual character in a given string. That is not supported in Python because it is immutable. Hope it is clear to you. Next is traversing a string. What do you mean by traversing? Traversing का मतलब क्या होता है? You are going to access individual element one by one. That means traversing a string means going through the element of a string one character at a time. We'll see one example. For traversing a string, you need a loop. Loop मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में. Normally traversing के लिए हमेशा for loop को यूज किया जाता है. See here, this is the example for traversing a string. As I told, traversing means going through the elements of a string one character at a time. Here the string is Python. It is stored in the variable name. Now I have used a loop, that is for loop, for a in name. A in name is the first time when the loop will be executed, it will take the first character of the string. As I told, it is going to take one character at a time. यानी एक ही बार आपका ये total जो character है Python, वो string completely को वो loop में नहीं लेगा. It will take one by one. So the first character that is taken is capital P. A in name. So P is taken. So if you are printing A means what character is there? When the first time loop is executed, it is P. So P will be printed. Then after that, I have given hyphen. So hyphen will come. Then next end equals to. As a separator, I have used space. Space means when the next time the loop is executed, जब आपको सेकेंड बार जब आउटपुट मिलेगा, there will be a space between the two characters. So next time the second character is y. So when the loop is iterated for the next time, the second character will be taken, that is y. So it will be printed y. Then accordingly T H O N. In this way you will get the output. So normally traversing में क्या होता है? Each and individual character one by one लिया जाता है and it is normally done with the help of for loop. For loop use करके आप traversing कर सकते हैं. Students, next is string operators. What do you mean by operator? Operator is nothing but it is a symbol that will perform some sort of operation on data or operand. यानी operator
किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एनी टाइप ऑफ कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर. इन द केस ऑफ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स देयर आर टू स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, वन इज प्लस दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, and second one is into symbol, that is asterisk, it is called as string replication operator. There are two string operators in Python. One is string concatenation operator जिसके लिए प्लस सिंबल को यूज किया जाता है. सेकेंड इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर जिसके लिए हम एस्ट्रिक सिंबल जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है, द सेम सिंबल इज यूज्ड एज ए स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर. नाउ विल सी वन एग्जांपल. फर्स्ट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंकैटिनेशन? कंकैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जॉइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टू गेट अ सिंगल स्ट्रिंग. यानी कि कंकैटिनेशन को यूज करके वी कैन कंबाइन, वी कैन जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग्स टू गेट अ सिंगल string. For example, the first string is hello. If I write hello plus world, the two strings are, one is hello, another one is world. In between the two strings I have used the string concatenation operator plus. तो जब आप plus symbol use करेंगे, as I told, it will combine two or more strings to get वन स्ट्रिंग. यहाँ पर अगर आप स्पेस देंगे तभी यहाँ पर स्पेस प्रिंट होगा. तो यहाँ पर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन से क्या हुआ है? दो स्ट्रिंग कंबाइन होके यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल स्ट्रिंग दैट इज हेलो वर्ल्ड. यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, जब आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर को यूज करते हैं बोथ द ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप. समझ में आ रहा है? जब भी आप कंकैटिनेशन ऑपरेटर या प्लस सिंबल को यूज करेंगे बोथ द ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप. ये आपका ऑपरेंड है जिसपे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है. सो ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप. जैसे यहाँ पर ये भी स्ट्रिंग टाइप है, ये भी स्ट्रिंग टाइप है, तभी आप कंकैटिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं. अगर एक स्ट्रिंग टाइप है और एक नंबर टाइप है सो यू कैन नॉट परफॉर्म कंकैटिनेशन. सो इन द केस ऑफ कंकैटिनेशन बोथ द ऑपरेंड्स शुड बी ऑफ द सेम टाइप. इधर वो इंटीजर टाइप होना चाहिए, दोनों इंटीजर होने से इट विल परफॉर्म एडिशन, एंड इफ इट इज स्ट्रिंग इट विल परफॉर्म कंकैटिनेशन लाइक दिस. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन. स्ट्रिंग रेप्लिकेशन में हम इनटू सिंबल यूज करते हैं. इन द केस ऑफ स्ट्रिंग रेप्लिकेशन हियर टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड. वन इज you need a string and you need a number. स्ट्रिंग रेप्लिकेशन में आपको दो चीज चाहिए होगा. वन इज स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग बताना है जिसको आप रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं, जिसको आप रिपीट करवाना चाहते हैं. एंड द नंबर, नंबर ये आइडेंटिफाई करेगा हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग. समझ में आ रहा है? यानी जब आप स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करेंगे आपको दो चीज स्पेसिफाई करना होगा. वन इज द स्ट्रिंग दैट इज टू बी रेप्लिकेटेड एंड द नंबर इट विल इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी रिपीटेड. कितने बार रिपीट होना है, कितने बार रेप्लिकेट होना है. विल सी द एग्जांपल. सपोज if I want to print hello 3 times, so how I can write 3 into hello. इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं हेलो. बोथ द वेज आर करेक्ट. यहाँ पर देखिए ये नंबर है, मैंने बताया नंबर आपको चाहिए. सेकंड आपको क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो डबल कोट्स के अंदर है. सो रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है? यू आर रेप्लिकेटिंग द स्ट्रिंग हेलो 3 टाइम्स. जो नंबर आप इंडिकेट करेंगे उससे पता चलेगा कि स्ट्रिंग को आप कितने बार रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं. सो हियर 3 टाइम्स. और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो. फर्स्ट यू कैन गिव द स्ट्रिंग जिसको आप रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं, देन यू यूज द सिंबल इनटू दैट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर, देन यू कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आप रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं. ये दोनों में से किसी एक मेथड से आप लिख सकते हैं. यू विल गेट द आंसर एज हेलो ये दोनों तरीके से आप लिखेंगे आपको आउटपुट सेम मिलेगा. हेलो 3 टाइम्स रेप्लिकेट होगा. सो
होप इट इज क्लियर टू यू. ऑपरेटर से कंकैटिनेशन से आपको आउटपुट क्या होता है, इट इज गोइंग टू कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग्स टू गेट अ स्ट्रिंग. लेकिन जब रेप्लिकेशन यूज करते हैं तो जो स्ट्रिंग आप रेप्लिकेट करते हैं और जितनी बार आप स्पेसिफाई करते हैं आपको आउटपुट में उतनी बार वो स्ट्रिंग रेप्लिकेट होकर स्क्रीन में प्रिंट होकर मिलता है. समझ में आपको? स्टूडेंट्स, आफ्टर स्ट्रिंग ऑपरेटर्स नेक्स्ट देयर इज मेंबरशिप ऑपरेटर. There are 2 membership operators that exist in Python that are used with string. One is in, second is not in. These are the 2 membership operators for strings in Python. पहला है in, second है not in. in में क्या होता है? Normally, what is the use of membership operator? To find a character or a substring from a given string. अगर आप find out करवाना चाहते हैं whether a particular character or a substring exists in a given string, then if you are using in operator, it will return true if a particular character or a substring exists in a given string. अगर exist होता है, then it will show true. आउटपुट विल बी ट्रू. एंड फॉल्स जब आपका एग्जिस्ट नहीं होता है. Doesn't exist. That means if you are searching for a particular character or a substring and it is not present in a given string, then it will return false if you are using in operator. अगर आप membership operator in use करेंगे, you will get true if you are able to find out a particular substring or a particular character in a given string, and it will return false if that particular character is not present in the given string. If you are using not in में आपको true कब मिलेगा? जब कोई particular character exist नहीं करता है. just उल्टा हो जाता है आपका. not in के just in का opposite है. not in में आपको true कब मिलेगा? जब एक particular character जिसको आप search करवा रहे हैं in a given string, if it is not present, अगर वो present नहीं है, exist नहीं करता है, doesn't exist, then it will show true in the case of not in, and it will return false if that particular character exists in a given string. समझ में आया? Students, see here. This is the example where I have used in and not in membership operators. We'll see one by one. The first example, this is the prompt. Suppose if you are typing like this, A in haya. जब भी आप in या not in यूज़ करते हैं, आप किस तरीके से लिखेंगे? पहले आपको string लिखना है, then यहाँ पर आप in या फिर not in, जो ऑपरेटर आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, then again string will come. This is the pattern, this is the method in which you can use in and not in. आपको in या not in के दोनों साइड में आपको string को mention करना है. जो पहला string होगा that will indicate what character you want to search, what substring you want to search. जो पहला string आप लिखेंगे वो आपका जिस substring को आप search करवाना चाहते हैं वो आपका पहला string होगा. Second string मतलब जिसमें आप search करवाना चाहते हैं, in which particular string you want to search this particular substring or character. तो जो string given string है वो second होगा, जो पहला string होगा जो आप search करवाना चाहते हैं, और in between आप in या not in use कर सकते हैं. So here first is A in here, that means you want to search the character A in the given string here, HEYA. तो क्या होगा? It will go and search the character A in this particular string. तो इसीलिए आपको उसको रिवर्स नहीं करना है, पहले आप here लिख देंगे उसके बाद A लिखेंगे, then it will show error. First you have to give the character or the substring that you want to search. So here in this case A in here, what output you will get? Here I have used in. in में आपको पता है true आपको कब मिलेगा? जब जो कैरेक्टर आप सर्च करवा रहे हैं, इफ इट एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग, अगर वो गिवन स्ट्रिंग में वो प्रेजेंट है, देन इट विल रिटर्न एज ट्रू. तो यहाँ पर देखिए A इज प्रेजेंट, यहाँ पर फोर्थ कैरेक्टर में देखिए आपका A है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? ट्रू. मैंने बताया था ट्रू आपको कब मिलता है? जब आप जो स्ट्रिंग को सर्च करवा रहे हैं, इफ इट एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग, इफ इट इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, देन यू विल गेट द आउटपुट एज ट्रू. Second one, jab in here.
द सबस्ट्रिंग यू वांट टू सर्च, यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर आप सर्च करवा रहे थे, यहाँ पर एक सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग है JAP जिसमें टोटल 3 कैरेक्टर्स है। आप सबस्ट्रिंग भी दे सकते हैं किसी का पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग से सर्च करवाने के लिए। तो अगर आप लिखेंगे जैप इन हया, तो देखिए JAP, A तो प्रेजेंट है लेकिन J और P प्रेजेंट नहीं है। JAP एक साथ आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। सो इन दैट केस व्हाट आउटपुट यू विल गेट एज फॉल्स, क्योंकि आपने यहाँ पर इन यूज किया है। इन में जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सबस्ट्रिंग को सर्च करवाते हैं, इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग देन यू विल गेट द आउटपुट एज फॉल्स, इसीलिए यहाँ पर आपको फॉल्स मिला है। नाउ थर्ड वन, जैप इन जापान, यहाँ पर देखिए JAP, आप देखेंगे यहाँ पर गिवन स्ट्रिंग में भी JAP है, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रिंग है सब स्ट्रिंग में A और P, आपका A और P यहाँ पे भी स्मॉल लेटर में है, केसेस आर सेम, लोअर केस है, लेकिन जो J अल्फाबेट है जो आप सर्च करवा रहे हैं वो स्मॉल लेटर J है, लेकिन आप जो यहाँ पर गिवन स्ट्रिंग है वहाँ पर J है लेकिन कैपिटल लेटर में है। सो इन दैट केस वेदर द आउटपुट विल बी ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बिकॉज पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसके लिए केस सेंसिटिव होने का मतलब क्या होता है, अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर डिफरेंट फॉर पाइथन, अपर केस और लोअर केस वो डिफरेंट ट्रीट करता है। तो यानी कि इसके लिए स्मॉल j एंड कैपिटल J आर 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो बिकॉज ऑफ दिस द आउटपुट विल बी फॉल्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो सबस्ट्रिंग है वो यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन केस अलग होने की वजह से, स्मॉल और कैपिटल होने की वजह से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है। अगर यहाँ पर ये कैपिटल J होता, अगर आप इस तरह सर्च करवाते देन आपको आउटपुट क्या मिलता, ट्रू मिलता। होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज सब इक्वल्स टू हेल्प। सब इक्वल्स टू हेल्प, यहाँ पर कोई भी मेंबरशिप ऑपरेटर यूज नहीं हो रहा है, ना ही इन ना ही नॉट इन। तो यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट यू आर असाइनिंग अ वैल्यू हेल्प एज अ स्ट्रिंग टू द वेरिएबल सब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी false, nothing is present, just you are assigning the value, you will get as false. Next is sub to not in string. यहाँ पर देखिए sub to string नहीं है, कैसे आपको पता चलेगा, string होता तो ये डबल कोट्स में होता। अगर आप किसी स्ट्रिंग को देते तो आप डबल कोट्स में देते, यू आर गिविंग सब टू में इट इज नॉट ए स्ट्रिंग, देन व्हाट इज दैट, इट इज अ वेरिएबल, यानी कि सब टू में कोई वैल्यू होगा, वो वैल्यू यहाँ पर कहीं पे भी असाइन नहीं हुआ है। यू आर सर्चिंग अ वैल्यू नॉट इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में भी क्या वैल्यू है वो भी प्रेजेंट नहीं है। सो इस तरह केसेस में क्या होगा, यू विल गेट द आउटपुट एज ट्रू, नथिंग इज फाउंड, नथिंग इज प्रेजेंट, जस्ट यू हैव गिवन द वेरिएबल नेम्स एंड वेरिएबल में क्या वैल्यू है वो असाइन नहीं है, तो यहाँ पर आपको जस्ट आउटपुट ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट, स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेल्पिंग हैंड। यहाँ पर देखिए अब ये जो स्ट्रिंग दिया था, जो वेरिएबल दिया था वहाँ पर स्ट्रिंग असाइन हो रहा है, दैट इज हेल्पिंग हैंड इज गोइंग टू स्टोर इन द वेरिएबल स्ट्रिंग। सेकेंड, सब टू इक्वल्स टू हेल्प, सब टू में क्या वैल्यू दे रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं। देन इफ आई राइटिंग सब इन स्ट्रिंग, यहाँ पर देखिए पहला स्ट्रिंग में क्या है, कौन सा वेरिएबल को सर्च करवा रहे हैं, सब में क्या प्रेजेंट है, हेल्प, सेल्फ में सब में क्या वैल्यू है, हेल्प है। सो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सर्च हेल्प इन स्ट्रिंग में कौन सा वैल्यू है, स्ट्रिंग में आपका क्या है, हेल्पिंग हैंड है। यानी कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग को ही दे सकते हैं, यू कैन गिव वेरिएबल नेम ऑल्सो। सो इफ यू आर गिविंग वेरिएबल नेम्स देन द वैल्यू दैट इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विल बी सर्च। दैट मीन्स यहाँ पर सब जो वेरिएबल है उसमें क्या वैल्यू है, हेल्प है। सो इसीलिए हेल्प किस में सर्च किया जा रहा है, जो वैल्यू स्ट्रिंग वेरिएबल में प्रेजेंट है, स्ट्रिंग में क्या असाइन किया हुआ है, हेल्पिंग हैंड। तो यहाँ पर आप सर्च होगा हेल्प वेदर दिस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग, दैट इज हेल्पिंग हैंड, हेल्प प्रेजेंट है, so you will get the output as true, क्योंकि यहाँ पर in यूज किया गया है। समझ में आपको। नेक्स्ट देखिए सब टू इन स्ट्रिंग, सब टू में आपका देखिए क्या वैल्यू है, सब टू में कैपिटल हेल्प है, हेल्प वर्ड है, वर्ड इज सेम बट इट इज इन कैपिटल लेटर। इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपका सेम है, हेल्पिंग हैंड है। अब यहाँ पर जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में बताया था, इट इज ए केस सेंसिटिव, सो
हेल्प वर्ड यहाँ पर प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा, false. Why? Because it is the string, the substring that you are going to search, it is in capital letter and the given string is in small letter. So case अलग होने की वजह से the output will be false. Now the last one, sub में आपको पता है क्या है, help है. Not in string. Not in string का मतलब क्या है, सब में वैल्यू help है, whether help is not present in helping hand. जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पर लिखे थे सब इन स्ट्रिंग लिखे थे, तो आंसर क्या मिला आपको, ट्रू मिला, क्योंकि हेल्प इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग हेल्पिंग हैंड, वो एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट है. लेकिन जब वहीं पर इनकी जगह पर अगर हम नॉट इन यूज करते हैं, नॉट इन का मतलब क्या होता है, इट विल रिटर्न ट्रू इफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग. लेकिन यहाँ पर हेल्प तो प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट इन है. समझ में आपको? सो इस तरह के एग्जांपल्स में आप इन नॉट इन को यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स स्ट्रिंग में अदर देन स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, इस तरह की मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी अलाउड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. स्टूडेंट्स, होप वॉट एवर वी हैव सीन टुडे अंडर द टॉपिक स्ट्रिंग, दैट इज क्लियर टू यू. स्ट्रिंग टॉपिक में हमने पढ़ा है हाउ आइटम असाइनमेंट इज नॉट सपोर्टेड, हाउ यू कैन ट्रैवर्स अ स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप एंड द टू ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स कंकैटिनेशन and string replication operator. Then we have seen membership operators in and not in. In the next class I am going to teach you about two more subtopics under string, that is string slice, that is very important. Then string functions we will see, and later on we are going to see about list. Till then, take care.